Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is software re-engineering. In a previous lecture, we discussed some basic concepts about software re-engineering. We recap the previous lecture. We started with the unified theory of software evaluation. In this topic, we discuss different laws related to the software evaluation, like change is quite obvious in the business environment. With the passage of time, different changes occur in business process or changes in user requirements. So we need to change the software. So in this way, software continuously evolves. And similarly, when changes are accommodated, our system is updated, the complexity of the software increases. And if we do not plan to manage this complexity, it grows very rapidly. And we also discussed that with the passage of time, the software organization, the people who are working with that specific application, they get mastery of that software. They have good knowledge of their data structures and the operational procedures and the behavior of the software or system. And we said that with the passage of time, if we do not maintain the software properly, then definitely it becomes difficult to manage that software, and maintenance becomes quite difficult. And based on those different reasons are the factors that affect the system evolution. We need to move towards re-engineering, and re-engineering is the concept of introducing radical changes to the business process. When we talk about the software re-engineering, then we are discussing about the business process re-engineering and the software re-engineering. And then in detail we discussed two models. One is about the business process re-engineering model, and the other one was the software re-engineering process model. In business process re-engineering model, we said the key activities are business definition, process identification, and so on. In business definition, we need to define the business goals. What are the key goals or objectives that we want to achieve? And then we said the process identification. And in process identification, we need to identify the key process areas and key process activities. Once it is decided, we move towards process evaluation. And in process evaluation, we assess the existing processes. And then after the assessment, we jump into the process specification and design. And in process specification and design, we come up with the new task or activities or processes. We may develop use cases if we want to introduce the new processes or the task. And once it is decided, we go towards prototyping. And prototyping in this case means that we need to implement those business processes in at the small level, like within a group or for one project. And once it is completed, we may see the outcome, the results of the newly introduced processes. So the last step is refinement and instantiation. And in this case, in this activity, we focus on the refinement. If this process still needs some changes, so we introduce or we accommodate those changes, and then we apply the whole process to the organization. So these are the key activities of the business process model. When we talk about the software re-engineering process model, the first key activity is the inventory analysis. In inventory analysis, we said that we need to make a list of all the application within the organization. And when we prepare that inventory, we need to identify the key attributes related to the
each specification, like what is the business criticality of that specific application, what is the lifetime of that specification. So based on those different criteria, we can identify the potential candidates for the re-engineering. Whatever the applications we consider that that applications are quite important for our business, so we select those products or applications, and then we go for the re-engineering process. So in the second key activity, that is document restructuring, we decide about the documentation of that specific software or application. In old software or application, the legacy software, prototyping was the documentation was in some cases there was no documentation, or quite minimum level of documentation was available in the legacy systems. So we need to decide that either we are going to develop the complete documentation for this specific application, or we want to develop documentation for some specific components, or the components that we are going to add in that specific software. The third case is we decide to have no documentation for that application in that particular case, when we feel that there is no more changes in that software and its lifetime is almost completed. So documentation needs resources, so organization resources are always limited, so we need to make wise decisions for the documentation restructuring. And the next key activity in software re-engineering process model is reverse engineering. And in reverse engineering, we said that this specific concept was originated from the hardware domain, when some kind of hardware chips or hardware components are disassembled. By that hardware chip or the component is normally it is from the competitor side. So the competitor within the business want to know about the secrets of the competitors, so they just disassemble the hardware chip and to find out the specification or the design details about the component. So in the same way, we brought this term in software engineering domain, and in software engineering we consider the software code, and normally it is our own code. It is not the competitor's code, but the code that has no formal specification and design documentation. So we try to reverse the process, like we start with the code and try to come up with the requirements and the design specification. So we discuss this process, and then the code restructuring. Restructuring is again quite common re-engineering activity, and or you may say the reverse engineering activity, and we change the existing code into the better code, like maybe we transform our codes from procedural, or even the no proper paradigm is followed in the code, and so we jump into we transform our procedural code into object oriented code, or if that code has no organization, quite possible we change into structure paradigm or the procedural paradigm. And then we move towards data restructuring, and in data restructuring we said that our focus is on the data objects and what is the relationship between that data, and we try to come up with the new data objects or relationships based on the new paradigms and the technology. And the final step is forward engineering, and forward engineering is once we have the specification and the design details, so we again, first is the reverse engineering. Once we come up with the specification and the design documentation, now we again
convert that specification or details into the actual software or application. So this is the whole process. And at the sorry, यहाँ से दोबारा बोलने लगा हूँ ये अगली बुलेट के लिए. And finally we discussed different concepts of the reverse engineering in details. Now we start today's topic. Restructuring. Restructuring is I said that it is the key activity that can be for the code restructuring or data restructuring. So in other words, we may say it is a kind of modification of source code and our data. तो आम तौर पे इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो आपका प्रोग्राम आर्किटेक्चर होता है, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट आर्किटेक्चर. आवर फोकस इज ऑन डेटा और स्पेसिफिक कोड. और फिर इसके बाद जो आपका जो डिज़ाइन डिटेल्स होती हैं इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की, वो हमारा फोकस होता है रादर देन के जो प्रोग्राम आर्किटेक्चर है. इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को फोकस करते हैं और उसके साथ साथ हम जो लोकल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको फोकस करते हैं. और इसके अंदर जो है अगर मॉडिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हो तो फिर हम क्या करते हैं, वी मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड इंजीनियरिंग. फिर हम वहाँ पे उस एक्टिविटी की तरफ जाते हैं रादर देन रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ. फिर हम डिटेल के अंदर उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से डेवलप करने की कोशिश करते हैं. और अगेन रिस्ट्रक्चरिंग जो होती है दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव अ सॉलिड आर्किटेक्चर. सॉलिड अगर हमारे पास उसके स्ट्रक्चर है तो आर्किटेक्चर है, तो उस टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग को जो है वो कंसीडर करते हैं. और रिस्ट्रक्चरिंग इन द केस ऑफ कोड और डेटा. कोड रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं. कोड रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसका पर्पस क्या है, उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है. वी वांट टू कम अप विद बेटर डिज़ाइन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. ऐसा नहीं है कि हम फंक्शनैलिटी को चेंज करने जा रहे हैं, नहीं, हम उस कोड को चेंज करना चाह रहे हैं. हम ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन की तरफ आना चाह रहे हैं टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. अब कोड रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं और उन डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अपने डिज़ाइन को जो है वो बेहतर कर सकते हैं. द फर्स्ट टेक्निक जो यहाँ पे डिस्कस हुई है दैट इज़ वार्नियर लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स है. और इसके अंदर जो है बूलियन अलजेब्रा को फॉलो किया जाता है, बूलियन अलजेब्रा को यूज़ किया जाता है और डिफरेंट लॉजिकल स्टेट्स बनाई जाती हैं और उसके थ्रू जो है उसको कोड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है. और फिर अगेन जो है वो मैच किया जाता है कि सेम जो है आपके पास आउटकम और रिजल्ट्स और सेम फंक्शनैलिटी है. और ये स्पेसिफिकली कब यूज़ होता है, जब आपका कोड जो है समहाउ स्पैगेटी बाउल नेचर का है कि जिसके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बहुत हैपहैज़र्ड किस्म का आपका कोड है. तो उसको अगर आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जाना है, स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम को और मॉड्यूल्स के अंदर उसको या फंक्शंस के अंदर आपने उसको ड्राइव करना है, उस कोड में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम के ऊपर आप ये टेक्निक जो है यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से एक दूसरा ऑप्शन जो है कोड रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर दैट इज़ यूज़ ऑफ टूल्स. डिफरेंट री इंजीनियरिंग टूल्स अवेलेबल हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, आप डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, डेवलप करते हैं. वंस यू कम अप विद द डिफरेंट डायग्राम्स दैट आर कॉल्ड रिसोर्स एक्सचेंज डायग्राम्स. और वो आपके प्रोग्राम मॉड्यूल्स के ऊपर और रिसोर्सेज को आपको इंडिकेट करती हैं. और उसके बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग द टूल्स डिफरेंट जो डायग्राम्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं. और अगेन जो है आपका जो प्रोग्राम आर्किटेक्चर होता है इस केस के अंदर उसको इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाता है. वी ट्राई टू मिनिमाइज द कपलिंग इन दिस केस. तो कपलिंग को जो है बिटवीन जो कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स जो कम्युनिकेशन है उसको मिनिमाइज किया जाता है. अब बात करते हैं डेटा रिस्ट्रक्चरिंग की. और डेटा रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो कब होती है,
डेटा रिस्ट्रक्चरिंग करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू डू द एनालिसिस ऑफ द सोर्स कोड। पहले सोर्स कोड जो है उसका एनालिसिस करते हैं एंड पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द डेटा डेफिनेशंस, फाइल डिस्क्रिप्शंस, इनपुट एंड आउटपुट, इंटरफेस डिस्क्रिप्शंस, इन सब को जो है हम देखते हैं, एवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और वंस इट इज डिसाइडेड, इट इज असेस्ड यूँ कहना चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर सोर्स एनालिसिस के बाद क्या डेटा एनालिसिस होता है। और ये डेटा एनालिसिस ही बेसिकली ये प्रोसेस है जिसके अंदर डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है। और फिर इसके बाद हम मूव करते हैं डेटा डिज़ाइन के ऊपर या डेटा रीडिज़ाइन के ऊपर। और डेटा रीडिज़ाइन के ऊपर क्या करते हैं हम, वी गो फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, कि जो आपका डेटा पहले जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट स्टैंडर्ड के ऊपर हो, तो जब आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी अप्रोच क्या होगी, यू नीड टू स्टैंडर्डाइज इट। और उसके बाद जो है क्वाइट पॉसिबल के जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उनके जो टाइटल्स या टैग्स या नेम्स जो हैं दैट आर नॉट टू मच मीनिंगफुल, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज जो है अप्रोच के साथ उसको प्रॉपर नेम जो है देते हैं। और फिर इसी तरह से क्वाइट पॉसिबल कि हम डेटा रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर या इस स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट इज डेटा रीडिज़ाइन, वी डू द फिजिकल मॉडिफिकेशन टू द एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। फिजिकल मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है कि आपका डेटा जो है वो किसी एक पहले स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट में था, आप उसको किसी दूसरे स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट पे ले जाएं, या पहले किसी एक स्पेसिफिक डेटा सिस्टम को आप डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे थे और अब उसको किसी और मॉडर्न जो है करंट जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आप उसके ऊपर लेके जाएं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है डेटा रीडिज़ाइन के अंदर होती हैं। और इन जनरल ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आपका सोर्स एनालिसिस होता है, फिर आपका डेटा एनालिसिस होता है, और फिर डेटा रीडिज़ाइन होता है, दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ द डेटा रीस्ट्रक्चरिंग। अब हम एक और की एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के अंदर, एंड दैट इज़ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई मैजिक स्लॉट नहीं है हमारे पास कि जिसके अंदर आप अपनी इनपुट दें और दूसरी साइड से आपके पास आपकी प्रोडक्ट या आपकी सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन वो रेडी होके आ जाए। सो यू नीड टू बी केयरफुल। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसको आपको केयरफुली करना होगा, देखना होगा। और इसके अंदर देखिए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग अगेन कि आपके पास स्पेसिफिकेशन आ गई है और उन स्पेसिफिकेशन से आपने दोबारा प्रोडक्ट बनानी है, नया वर्जन लेके आना है। इसको इस तरह से एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो किस तरह के सिनेरियो के अंदर देखिए हमें हेल्प आउट कर सकता है, या सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जैसे कि लगती है। कंसीडर करें कि अगेन कि कोई कोड है जिसके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उस कोड के अंदर सो कॉल्ड जो मॉड्यूल्स हैं दैट आर अबाउट 2000 स्टेटमेंट्स लेंथी कोड। तो इतने लंबे उसके जो है इतने लेंथी मॉड्यूल्स है। और फिर अगेन उसके अंदर जो कमेंट्स हैं मीनिंगफुल कमेंट्स नहीं है, उस लैग कर रहा है। आपको जो कमेंट्स के थ्रू जो गाइडेंस मिल सकती है दैट इज़ मिनिमम। और फिर इसी तरह से जो इसकी टोटल स्टेटमेंट्स हैं इस स्पेसिफिक प्रोग्राम की दैट इज़ 290,000। तो ह्यूज प्रोग्राम है और क्वाइट इंटरेस्टिंगली आपके पास कोई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो अब आप देखें कि इस तरह का कोड आपको दे दिया जाए, इस तरह का प्रोग्राम एप्लीकेशन जो है आपको इस तरह का कोड या एप्लीकेशन आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या मॉडिफिकेशन ऑप्शंस हैं, किस तरह से आप इसको मॉडिफाई करेंगे, क्या री इंजीनियरिंग होगी? तो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज यू कंटिन्यू विद दिस आई सेड एड हॉक डिज़ाइन, इसी अप्रोच के साथ जो कि कोई स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है। वो रैंडम जो कोड आपका जनरेट हुआ है या एप्लीकेशन बनी है उसके अंदर रैंडम चेंजेस होती रही हैं, यू कंटिन्यू विद इट।
और वो कब होता है, जब इसको पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे थे। इफ़ यू फील कि अब जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर देयर आर नो मोर चेंजेस, ठीक है, और उसकी लाइफ टाइम इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, सो यू नीड टू गो फॉर द नो डॉक्यूमेंटेशन। उसी तरह से यहाँ पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के केस के अंदर भी आपकी बिजनेस प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं कि जिसके अंदर उस पर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। सेकेंडली, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इनर वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम, और वो इनर वर्किंग को समझ के फिर आप उसी कोड के अंदर जो है चेंजेस लेके आएंगे। यू वांट टू रीडिज़ाइन, रीकोड एंड रीटेस्ट द रेलेवेंट पोर्शंस, जहाँ पे आपने फील किया कि यहाँ पे आपको चेंजेस अकोमोडेट करनी है या चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे ये प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो है ये बेहतर हो सकता है, तो वो आप जो है ना चेंजेस कर लें। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, यू रीडिज़ाइन द कंप्लीट एप्लीकेशन। आप कंप्लीट जो है रीडिज़ाइन की तरफ जाएं इफ़ यू फील दैट दैट एप्लीकेशन इज़ क्वाइट क्रिटिकल फॉर योर बिजनेस एंड इट इज़ बेनिफिशियल और इट इज़ लाइक गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस स्पेसिफिक केस, कि आप उसको रीडिज़ाइन करें और रीकोड और रीटेस्ट और सारा एक नई एप्लीकेशन बनाएं सेम फंक्शनैलिटी के लिए ऑब्वियसली। और फिर इसके बाद अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा बेहतर है, ये जो डिफरेंट हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका कोई सिंगल करेक्ट आंसर नहीं है। डेफिनेटली आपके जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, स्पेसिफिक टू दैट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपने किस तरह की मॉडिफिकेशन करनी है। तो आप जब इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, यू नीड टू कंसीडर दोज ऑल फैक्टर्स। अच्छा, जब हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये कब होगा, तो इसके लिए एक तो गाइडेंस ये है कि वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर द मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, कि हमें कोई जो सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो आपको स्पेसिफिक सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए, उसको वेट नहीं करना चाहिए फॉर सम रिक्वेस्ट इवन फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इसके अंदर क्या करना है, यू नीड टू सेलेक्ट द सॉफ्टवेयर, यू नीड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और डेफिनेटली उसके अंदर जो आपने जो फैक्टर्स, जो की फैक्टर्स हैं, द फर्स्ट वन के आपने ये देखना है कि फॉर हाउ लॉन्ग इट विल स्टिल रिमेन इन यूज, कि वो जो क्या नंबर ऑफ ईयर्स हैं जब अभी उस एप्लीकेशन ने स्टिल रन होना है, और फिर इसी तरह से कितना सक्सेसफुली एप्लीकेशन को ही रन हो रही है या हो चुकी है, दैट इज़ आल्सो अ की पैरामीटर। और फिर कितनी कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं आने वाले दिनों में, और फिर बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, ये हमने पीछे डिटेल में डिस्कस कर लिए, इसलिए अब इनको दोबारा मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो हम डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के, कि हमने रीडिज़ाइन पे जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन की, हमने कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को जो है रीडिज़ाइन करना है, या हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। और हम क्यों रीडेवलप करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना, कि मेंटेनेंस जब हो सकती है, जब हम उसको समहाउ चेंज कर सकते हैं, तो रीडेवलपमेंट जो है उसकी की रीज़न ये है, हमने पहले देखा कि जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट कह लें उसको, या आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो कॉस्ट होती है किसी बग को, किसी डिफेक्ट को फिक्स करने की, दैट इज़ क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू कॉस्ट एट द रिक्वायरमेंट्स लेवल, जब आप वहाँ पे किसी एरर को फिक्स करते हैं। तो देखें, ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं, इसीलिए ये वैल्यूज़ काफ़ी वैरी करती हैं, लेकिन स्टिल जो इस चैप्टर के अंदर एक डिस्कस किया गया है इस फैक्टर को, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग वन लाइन ऑफ सोर्स कोड may be 20 to 40 times as compared to the cost of initial development of that line. तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है at some certain level, तो उसको कंसीडर करते हुए हम रीडिज़ाइन के ऊपर जा सकते हैं या रीडेवलपमेंट के ऊपर जा सकते हैं। और क्या रीजंस हो सकती हैं रीडेवलपमेंट की, तो रीडेवलपमेंट की एक
पहली रीज़न जो हमने डिस्कस की दैट इज़ कॉस्ट, और फिर अब उसके बाद जो दूसरी एक रीज़न हो सकती है दैट इज़ रीडिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है जब हम उसको रीडिज़ाइन करते हैं, करंट जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो भी करंट कॉन्सेप्ट्स हैं डिज़ाइन के, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, उनको जब हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये हमें हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर मेंटेनेंस। वो ज़्यादा इजी होगी उसकी मेंटेनेंस एज़ कम्पेयर टू के आप उसी पुराने कोड को लेके चलते रहें जिसकी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो उससे बहुत बेहतर है कि एक दफ़ा आप उसको रीडेवलप करें, रीडिज़ाइन करें। यू फील कि इस प्रोजेक्ट ने और भी एप्लीकेशन ने कुछ साल चलना है, तो आप उस आर्किटेक्चर को बेहतर एक पैराडाइम के साथ जो है रीडेवलप करेंगे तो डेफिनेटली मेंटेनेंस जो है वो इजी हो जाएगी। एक और क्या रीज़न हो सकती है कि आपकी जो रीडेवलप करने की एक और की रीज़न हो सकती है कि आपका सॉफ्टवेयर तो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि दैट इज़ प्रोटोटाइप फॉर यू। वो प्रोटोटाइप है, आपके यूजर्स ने उसको यूज़ कर लिया है, तो अब जब उसको डेवलपमेंट करनी है तो दैट डेवलपमेंट वुड बी आई वुड से कि क्वाइट ईजी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पहले से अंडरस्टैंड कर ली गई हैं और यूज़र के एक्सपीरियंस भी आपको पता है, तो अब उसकी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा जल्दी होगी। और फिर इसी तरह से और क्या रीजंस हो सकती हैं रीडेवलपमेंट की, अगेन के जो यूज़र जो है उसको आइडिया हो गया, तो अगर अब उसने कोई नई रिक्वायरमेंट्स देनी है, अगर उसने जो भी एक्सपीरियंस लिया है विद दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, उसको पता है कि अब उसकी क्या और कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो बड़ी ईजिली कन्वे भी कर सकता है और होपफुली उसको अकोमोडेट भी किया जा सकता है। इसी तरह से रीडेवलपमेंट की एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि nowadays we have some automated tools जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं और हमारी डेवलपमेंट टाइम जो है वो कम हो सकता है, इट कुड बी शॉर्टर। और फिर इसी तरह से जो है अगर हम रीडेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो एक और जो फैक्टर है जो कि हमें मोटिवेट कर सकता है दैट इज़ वी हैव द कंप्लीट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, और वो हमें बाद में जो है हेल्प करेगी और हमारी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी। और दैट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट, डिफरेंट जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स और डेटा, वो सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा। अब एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, और ये सिनेरियो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है इन विच दे हैव अबाउट 500 to 2000 प्रोडक्शन प्रोग्राम्स, डिफरेंट उनकी मल्टीपल एप्लीकेशन हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। अब उसके अंदर आप किस जो है प्रोग्राम या एप्लीकेशन को जो है कंसीडर करेंगे री इंजीनियरिंग के लिए, तो डेफिनेटली अगेन आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस। यू विल सेलेक्ट द पॉसिबल कैंडिडेट्स जिनको आपने री इंजीनियरिंग करना है, और फिर उसके अंदर भी अगेन जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, और उस प्रोसेस के अंदर जो शॉर्टलिस्ट होंगे, जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड अ सिंपल प्रोसेस। इसके अंदर डेफिनेटली जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, वी नीड टू अप्लाई द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट मेथड्स, और ये सारी चीज़ें हमें अकोमोडेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉलेज जो है वो डोमेन की जो भी अंडरस्टैंडिंग है और डिफरेंट टूल्स मेथड्स हैं वो सारे अकोमोडेट करने होंगे। और फिर इसी तरह से फॉरवर्ड इंजीनियरिंग डज नॉट मीन कि आप सिंपली जो है वो पुराना जो भी प्रोग्राम या आपका जो कोड या सॉफ्ट एप्लीकेशन है उसको एक नया वर्जन उसका क्रिएट कर दें। नो, पहले जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम रीडेवलपमेंट पे जाते हैं तो हम नए आर्किटेक्चर पे जाते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस पे जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उससे जो बाद में हमारा फ्यूचर की जो मेंटेनेंस है और जो फ्यूचर की हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं उसको हम प्रॉपर्ली अकोमोडेट कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस नया वर्जन बना दिया जाए जिसके अंदर ये नए
जो करंट या इमर्जिंग ट्रेंड्स जो है उनको या टेक्नोलॉजीज को जो है वो यूज़ ना किया जाए। और इसी तरह से जो फोकस है दैट इज़ ऑन द न्यू यूज़र रिक्वायरमेंट्स और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। एक तो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की, और दूसरा ये कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज न्यू रिक्वायरमेंट्स, और उसको भी अकोमोडेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि जी हम रिजिड हो जाएं कि जी जो पुराने प्रोग्राम की फंक्शनलिटी, सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी है और उसी को हम लेके जो है दोबारा जो है नया वर्जन भी वही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वी नीड टू अकोमोडेट न्यू यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और डेफिनेटली वो लिमिटेड होंगी, वो अनलिमिटेड नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर दो डिफरेंट जो है की अप्रोचेस जो फॉलो की गई हैं जब हमने पुरानी एप्लीकेशंस को कन्वर्ट किया या री इंजीनियर किया, ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म जो होगी। द फर्स्ट पैटर्न या अप्रोच दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स, और ये मेन फ्रेम जो एप्लीकेशंस थी, पुरानी एप्लीकेशंस, उनको जो है हम लेके गए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स के ऊपर। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स के ऊपर क्यों लेके गए? तो पहली जो है उसके अंदर जो की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो चीज़ समझने वाली है, दैट इज़ कि एप्लीकेशन फंक्शनलिटी जो थी उसको हमने माइग्रेट किया। मेन फ्रेम जो एप्लीकेशंस थी उसके अंदर उसको कैसे माइग्रेट किया या कैसे उसको री इंजीनियर किया। जब हमने फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फंक्शनलिटी को लेके गए हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, और फिर हमने वहाँ पे नए ग्राफिकल इंटरफेसेस बनाए जो कि इम्प्लीमेंट किए अगेन क्लाइंट साइड के ऊपर। और हमने डेटाबेस फंक्शंस जो है उनको और डेटाबेस सिस्टम को प्रॉपरली जो है वो एलोकेट किया टू द सर्वर। और स्पेशलाइज्ड जो फंक्शनलिटी जो आपकी थी, जो इंटेंसिव कंप्यूटिंग कह लें उसको, दैट वाज स्टिल विद द सर्वर साइड, और उसको सर्वर साइड पर रखा गया। और फिर इसके अंदर हमने क्या किया, जो भी हमारे नई कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, आर्काइविंग से रिलेटेड, कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो सारी हमने उसको एड्रेस किया, उसको एस्टेब्लिश किया एट बोथ साइड, क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। तो ये डिफरेंट की कंसिडरेशंस थी जब हमने मेन फ्रेम एप्लीकेशंस को री इंजीनियर किया ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और फिर अगेन इसके अंदर आपको जब आपने री इंजीनियरिंग की, और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जो री इंजीनियरिंग की एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग या री इंजीनियरिंग के अंदर दोनों केसेस में वी नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस री इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, और जब क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटरप्राइज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको कैसे हमने उसके लिए रिसोर्सेज क्या होंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट हैं जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, कि जब हम मेन फ्रेम एप्लीकेशन को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट विद द थॉरो एनालिसिस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस और द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें उस पूरे एनवायरनमेंट, उस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो तभी हम प्रॉपरली उसको उस तरह से माइग्रेट कर सकेंगे एप्लीकेशन को। और फिर उसके अंदर वी नीड टू आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, और वो 3 डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं वो आपको भी आइडिया होगा जब क्लाइंट सर्वर की जब हम बात करते हैं। द फर्स्ट लेयर इज द डेटाबेस लेयर, क्या आपका डेटा है, क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है, हाउ टू सेव दैट डेटा, हाउ टू रिट्रीव इट, हाउ टू अपडेट इट, ये सारी जो डेटाबेस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना। और फिर उस लेयर को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उसकी कम्युनिकेशन होगी सर्वर साइड्स और फिर सर्वर से क्लाइंट साइड, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। और फिर सेकंड लेयर इज द बिजनेस रूल्स लेयर। बिजनेस रूल लेयर्स क्या है कि वो बिजनेस लॉजिक क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट बिजनेस प्रोसेस, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्वर साइड पे होता है। तो उस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, और इट इज़
also it may be the part of client side. तो एनीवेज वो बिजनेस प्रोसेस को आप जो है उस लेयर को अंडरस्टैंड करें, उस वो क्या सारा प्रोसेस है उसको कैसे आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड थर्ड इज द क्लाइंट एप्लीकेशंस लेयर, जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह के इंटरफेस देने, डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं. तो वो जो एप्लीकेशंस हैं क्लाइंट साइड वाली उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना. तो ये सारी कंसिडरेशंस हैं इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जब आप मेन फ्रेम एप्लीकेशंस को री इंजीनियर करते हैं फॉर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. अब हम बात करते हैं जब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की एक और की अप्रोच या डोमेन, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स, कि जब आप अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो लेके जाएं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो है पिछले कई सालों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस की चॉइस रहा है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डेवलपमेंट की है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम. और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने एप्लीकेशंस डेवलप की और या री इंजीनियर किया. तो अब कुछ एप्लीकेशंस के केस के अंदर क्या हो सकता है कि आप उसको एज इट इज़ रहने दें. वही अगेन कि अगर आप समझते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ और एप्लीकेशंस को आप क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अप्रोच को लेते हुए री इंजीनियर कर सकते हैं. और फिर उसके अंदर जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है दैट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड और क्रिएट द अप्रोप्रिएट डेटा, फंक्शनल एंड बिहेवियरल मॉडल्स. ये डिफरेंट मॉडल्स जो है आपने क्रिएट करने जब आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है. जब ये आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, मॉडल कर लिया कि क्या डेटा है, क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बिहेवियरल मॉडल्स हैं, तो फिर उसके बाद अगर आपके एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है, एक्सटेंडेड बिहेवियर रिक्वायर्ड है, कोई नई रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट करना है इन दैट सेम एप्लीकेशन, then you need to create or develop use cases. use cases बनाते हैं और उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हैं नई रिक्वायरमेंट्स को, नया कैसे आपके सिस्टम का इंटरेक्शन होगा. और की एक्टिविटीज क्या होंगी आपकी, क्लास हायरार्कीज बनेंगी, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल्स बनेंगे, ऑब्जेक्ट बिहेवियर मॉडल्स बनेंगे और सब सिस्टम जो है वो डिफाइन होंगे. तो ये डिफरेंट जो है की एक्टिविटीज़ कह लें कि जो इस प्रोसेस के अंदर होंगी. और आइडियल केस के अंदर ये हो सकता है कि आपके पास पहले से कंपोनेंट लाइब्रेरी हो, आपके पास पहले से जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन हो, आपके पास डिफरेंट क्लासेस हो और आप उनको रीयूज़ करें, उनको उस डोमेन के अंदर, उस रेलेवेंट डोमेन के अंदर यूज़ करें. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एटलीस्ट ये हो सकता है कि जो आपके पास उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी समहाउ रीयूज़ किया जा सकता है. तो ये डिफरेंट की एक्टिविटीज़ हैं जब आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. अब हम बात करते हैं री इंजीनियरिंग की इकोनॉमिक्स की. क्या इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और किस तरह से हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. तो री इंजीनियरिंग डेफिनेटली ये बात तो पहले इस्टेब्लिश होगी कि वी नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू डू री इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़. और इसीलिए हमने कहा कि हम एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्पसेस होते हैं और वो अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमाइज यूज़ करना चाहते हैं. तो इसीलिए अगर हम री इंजीनियरिंग के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स प्रपोज किए गए और ये पैरामीटर्स हम ही देखते हैं अभी वन बाय वन इनको कि ये क्या है. तो P1 जो है फर्स्ट पैरामीटर दैट इज वी नीड टू एस्टिमेट द करंट एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फॉर एन एप्लीकेशन. कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट अभी जो है, और ये एक हो सकता है कि आपके पास एक्यूरेट फिगर हो, लेकिन नॉर्मली ये क्या होगा कि आपका एक एस्टिमेट होगा कि कितनी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है. इसी तरह से जो दूसरा पैरामीटर हो सकता है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखना है कि आपके पास
उसकी करंट एनुअल जो ऑपरेशनल कास्ट है वो क्या है। अब मेंटेनेंस कास्ट जो है सिर्फ मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज है, जबकि ऑपरेशनल कास्ट जो है ओवरऑल कॉस्ट है उस एप्लीकेशन के लिए। इसी तरह से तीसरा पैरामीटर करंट एनुअल बिजनेस वैल्यू ऑफ एन एप्लीकेशन, कि वो एक अगेन वैल्यू एस्टिमेशन कि आपको कितने क्रिटिकल है आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेशन, कितनी जो है ये बिजनेस वैल्यू रखती है आपकी एप्लीकेशन, और इसको भी आपने किसी समहाउ नंबर्स में लेके आना है। इसी तरह से जो पैरामीटर जो फोर्थ है दैट इज प्रिडिक्टेड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ री इंजीनियरिंग। वंस यू आर डन विद द री इंजीनियरिंग, अब जो नया वर्जन है उसके साथ आपकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। और फिर इसी तरह से जब आपने री इंजीनियरिंग कर लिया, जो फिफ्थ पैरामीटर है दैट इज प्रिडिक्टेड एनुअल ऑपरेशनल कास्ट। ऑपरेशनल कास्ट क्या होगी आफ्टर द री इंजीनियरिंग। सिक्स्थ पैरामीटर इज प्रिडिक्टेड एनुअल बिजनेस वैल्यू आफ्टर री इंजीनियरिंग। डेफिनेटली आप इंप्रूव कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स को जो है उसमें अकोमोडेट कर रहे हैं, तो अब आफ्टर री इंजीनियरिंग उसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, और यू नीड टू एस्टिमेट, अगेन प्रेडिक्शन है आपकी। और फिर इसी तरह से एक और पैरामीटर है कि एस्टिमेटेड री इंजीनियरिंग कॉस्ट क्या है आपकी, जब आप वो सारी री इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज हैं उन पे क्या कॉस्ट आएगी। इसी तरह से एक और पैरामीटर कि जो आपका जो री इंजीनियरिंग एक्टिविटीज है उनके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, सो यू नीड टू एस्टिमेट द री इंजीनियरिंग कैलेंडर टाइम। इसी तरह से एक और जो पैरामीटर है दैट इज अबाउट रिस्क फैक्टर। जब री इंजीनियरिंग रिस्क फैक्टर कितना है उस एप्लीकेशन के लिए जाएंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि आप आपका जो स्टाफ है, जो डेवलपमेंट टीम है, वो उसको सक्सेसफुली जो है री इंजीनियर ना कर सके, क्योंकि पहले भी हमने कहा कि इसके अंदर एक्सपर्टीज चाहिए, ये इतना सिंपल टास्क नहीं है। और फिर इसी तरह से एक और पैरामीटर है दैट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सिस्टम, कि कितनी उसका लाइफ टाइम है। और फिर इसके थ्रू जो है हम डिफरेंट तरह की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपनी स्लाइड पे देखें, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग मेंटेनेंस, तो उसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है मेंटेनेंस कॉस्ट को। और डेफिनेटली इसके अंदर वही अगेन जो आपकी मेंटेनेंस एनुअल कॉस्ट है विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, और जो आपकी एनुअल जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो उनको आपने देखना है। तो इस तरह से आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर देखें, इसमें आप जो री इंजीनियरिंग के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट है उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं, और फिर इन दोनों तरह की जो कॉस्ट हैं इसके बेस के ऊपर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। जो टोटल कॉस्ट है री इंजीनियरिंग की, उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें जो मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो वो नंबर आपको बताएगा कि आपका कॉस्ट बेनिफिट क्या नंबर आता है, कि क्या ये आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। और अगेन ये जो री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है ये सिर्फ हाई प्रायोरिटी एप्लीकेशंस के लिए होना चाहिए। जो हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट एप्लीकेशंस आपको इन कैलकुलेशंस के थ्रू जो आपको जहाँ पे हाईएस्ट नंबर मिल रहा है उनको आप टारगेट करेंगे, और जो बाकी जो जहाँ पे ये कॉस्ट बेनिफिट नंबर कम है तो उनको क्या करेंगे आप, you need to postpone that application until you have enough resources to do re-engineering activities for those specific applications. तो again prioritize करना है, और जहाँ पे आपको highest cost benefit है उसको आपने target करना है। अब हम एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सॉफ्टवेयर रीयूज, और ये चैप्टर नंबर 16 है। बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय आयन सोमरविली, 9th एडिशन है। इससे पहले जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, प्रेसमैन की बुक थी, उसका 7th एडिशन। और अब जो अगले 2-4 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम सोमरविली की बुक को जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये चैप्टर 16 है अबाउट सॉफ्टवेयर रीयूज। और सॉफ्टवेयर रीयूज जो है व्हाट डज इट मीन, हमने इसको पहले भी इस टर्म को यूज़ किया लेकिन इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। और सॉफ्टवेयर रीयूज इन सिंपल वर्ड्स कि आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, और फिर उसको दोबारा जो है उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए, उसी तरह के बिजनेस के लिए आप उसको उसी एप्लीकेशन को या उसी कंपोनेंट को जो है यूज़ करें। और डेफिनेटली इसमें क्या होगा, आपकी
जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। और इस पे अब डिटेल में बात करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर रीयूज है ये इनफैक्ट स्ट्रेटजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक स्ट्रेटजी है, दैट इज कॉल्ड रीयूज बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और फिर ये ओरिजिनली जो जब स्टार्ट हुआ तो इट वाज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये अर्ली मिड 60s के अंदर कहीं पे इस तरह की रीयूज की बात हुई और रीयूज को डेवलपमेंट के अंदर यूज किया गया। और इसके जो ऑब्वियस एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हो सकते हैं, दैट इज you go for when you go for the reuse, definitely you are reducing the production cost और obviously आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहे हैं। और मेंटेनेंस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग आपका कंपोनेंट या प्रोग्राम है और उसको टेस्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एरर्स या बग्स होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे एज कम्पेयर टू कि आप नया एक कंपोनेंट बनाएं और फिर उस कंपोनेंट के अंदर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बग्स या एरर्स रिमूव होंगे, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की वो ज़्यादा होगी। और फिर इसी तरह से क्या होगा, फास्टर डिलीवरी है। जब आप रीयूज़ करते हैं तो डेवलपमेंट एफर्ट आपकी कम हो रही है और आप ज़्यादा जल्दी सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं। और जो भी मैंने बात की कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि यू आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि रीयूज़ के साथ एसोसिएटेड हैं और स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर रीयूज़। अब हम सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट ही में सारी बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इटसेल्फ क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको हर जो नया आपका प्रोजेक्ट है या क्लाइंट है और सिमिलर आपकी समहाउ एक जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए आप बार बार जो है नए कंपोनेंट्स बनाएंगे या नए प्रोग्राम्स लिखेंगे, नहीं। उसी एग्जिस्टिंग जो आपका सॉफ्टवेयर है या जो प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स हैं उसी को यूज़ करेंगे और डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो आपका जो रीयूज़ है दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI भी कहते हैं। और फिर अगेन जो इसकी अवेलेबिलिटी है रीयूज सॉफ्टवेयर की, ये पिछले कुछ सालों में जो है ये बहुत बढ़ गई है। उसकी रीज़न क्या है कि ओपन सोर्स आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप इवन कंप्लीट एप्लीकेशंस जो है, कंप्लीट सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स हैं, उनका कोड अवेलेबल है। आप उसके अंदर लिटिल मॉडिफिकेशन करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप रिड्यूस्ड कॉस्ट के ऊपर जो है और ऑर्गेनाइजेशन से ओपन सोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर या कंपोनेंट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है रीयूज़ की। और सेकेंडली जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट आपको रीयूज कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। ऑलरेडी जो है ऑर्गेनाइजेशंस के पास कंपोनेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन सोर्स हो, उनका जो सोर्स कोड है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, लेकिन वो आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से एक और तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। डिफरेंट चीज़ों के स्टैंडर्ड्स बन गए और वो उन स्टैंडर्ड्स की वजह से जो है जनरल एप्लीकेशंस या जनरल सर्विसेज या सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेब सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स हैं, तो बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड द डिफरेंट वेब सर्विसेज। तो इस तरह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रीयूज़ की बढ़ गई है। रीयूज़ जो है वो ब्रॉडली 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकता है कि वो जो यूनिट है जिसको हम रीयूज़ करने चाह रहे हैं वो 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सिस्टम रीयूज़, और ये इस तरह का रीयूज़ है कि जिसके अंदर आपके पास पूरी एप्लीकेशन है, द होल एप्लीकेशन कैन बी रीयूज्ड। और फिर अगेन डिफरेंट आपके पास जो है वी में से के एप्लीकेशन फैमिलीज होती हैं, एक ही तरह की एप्लीकेशंस होती हैं और उनके लिए कॉमन आर्किटेक्चर होता है और उसकी बेस के ऊपर आप उनको रीयूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो दूसरा की लेवल है जिस लेवल के ऊपर रीयूज़ होता है सॉफ्टवेयर, दैट इज़ कंपोनेंट लेवल।
और कंपोनेंट लेवल के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट सब सिस्टम्स भी हो सकते हैं, और इवन सिंगल ऑब्जेक्ट भी जो है दैट मे बी रीयूज्ड। और इसके अंदर जो है आप एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे पैटर्न मैचिंग सिस्टम है किसी टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए, उसके अंदर जो मैचिंग का जो आपने प्रोसीजर लिखा है या सिस्टम या कंपोनेंट है, दैट कैन बी यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरह से भी हो सकता है, डिफरेंट कंपोनेंट रीयूज हो सकते हैं। एंड थर्ड लेवल इज ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन रीयूज, कि आपने कोई सिंगल जो कंपोनेंट है आपका किसी स्पेसिफिक एक फंक्शन के लिए, जो ऊपर का हमने कंपोनेंट रीयूज की बात की, वहां पे हम सब सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और नॉर्मली उसको हम जरा बड़े लेवल के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट और फंक्शन रीयूज की बात करते हैं तो यहाँ और ज्यादा माइक्रो लेवल कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्लास के ऊपर बात कर रहे हैं और एक सिंगल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि वो जो कंपोनेंट परफॉर्म कर रहा है, और उसको हम रीयूज कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं, उसके अंदर आपकी डिफरेंट जर्नल एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेड होती हैं, उनको आप जो है उन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरह से एक और तरह का रीयूज क्या हो सकता है सॉफ्टवेयर से हटके, जो आप ये जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं इनको यूज करने की बजाय क्वाइट पॉसिबल के आप किसी का आइडिया रीयूज करें, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट रीयूज। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर हम उस सॉफ्टवेयर यूनिट को जो है देख सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर रीयूज हो रहा है। जब हम सॉफ्टवेयर रीयूज की बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस है हमें उन्हें भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है, उन्हें भी हमें कस्टमाइज करना होगा टू use the or follow or properly implement the reuse strategy. As it is उन प्रोसेस को नहीं चला सकते, reuse strategy के लिए हमें उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी होगी। और फिर अगेन ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकती हैं ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशंस। रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट स्टेज क्वाइट पॉसिबल कि आपको रिक्वायरमेंट्स के जो स्टेज है, जो फेज है, उसके ऊपर रीयूज कंपोनेंट जो आपने लिए हैं उनको आपने अपने सिस्टम में यूज करना है, तो उसकी वजह से आपको समहाउ रिक्वायरमेंट्स पे निगोशिएट करना पड़ सकता है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। उसी को हम कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स रिफाइनमेंट टू रीयूज द कंपोनेंट्स। और फिर इसी तरह से डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज एक्सप्लिसिटली जो है वो इंक्लूड हो सकती हैं, जो कि सपोर्ट करेंगी रीयूज की स्ट्रेटजी को। और फिर इसी तरह से ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा सॉफ्टवेयर रीयूज का जो स्ट्रेटजी है, जो फिनोमिना है, जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर इसको हम अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। और फिर इसके अंदर जो की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि वी नीड टू क्रिएट आवर ऑन रीयूजेबल एसेट्स। हम अपने कंपोनेंट्स, अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो रीयूज करते हैं, और डेफिनेटली उन कंपोनेंट के साथ साथ, उन एसेट्स के साथ साथ वी नीड टू कस्टमाइज आवर बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेसेस, जो हम उसको प्रॉपरली ताकि रीयूज कर सकें। और इसके अंदर एक जो ऐसे ही एक लाइट नोट है, दैट इज के जापानीज जो इंडस्ट्री है, जापानीज इंडस्ट्री इन जनरल और स्पेसिफिकली फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो उन लोगों ने काफ़ी अरसे से जो है रीयूज की स्ट्रेटजी को अपनाया है, एंड दे आर क्वाइट मैच्योर इन सॉफ्टवेयर रीयूज। क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं जब हम सॉफ्टवेयर रीयूज की तरफ जाते हैं? तो सबसे पहला क्या है, इंक्रीज डिपेंडेबिलिटी। व्हाट डज इट मीन कि आप एक ऑलरेडी टेस्टेड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो है मोर रिलायबल एज कंपेयर टू न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी जो है, लेवल जो है या रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो एक और बेनिफिट है, दैट इज रिड्यूस्ड प्रोसेस रिस्क। वो क्या है कि जो आपको एग्जिस्टिंग जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट ऑलरेडी आपको नोन है, उसके अंदर जो आप जब आप उसको रीयूज करते हैं तो वो जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा रिस्क फ्री है या एज कंपेयर टू जो न्यू डेवलपमेंट है उसके अंदर जो है रिस्क ज़्यादा होगा। क्यों?
कि उसके अंदर जो आपके एस्टिमेशन होगी कॉस्ट की, वो जो मार्जिन ऑफ एरर है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हमने कई दफ़ा इस बात को डिस्कस किया कि आईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या होते हैं, ओवररन होते हैं, ओवर बजटेड होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं। तो जब हम ऑलरेडी जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो उसके अंदर ये रिस्क कम हो जाएगा। और फिर इसी तरह से थर्ड देखें जो इसका बेनिफिट हो सकता है, दैट इज इफेक्टिव यूज ऑफ स्पेशलिस्ट, कि वी आर नॉट गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील, और ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी भी नहीं है। हम डोमेन स्पेशलिस्ट जो है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर उनकी जो उनका जो नॉलेज है वो इनकैप्सुलेट करते हैं इन दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट या एप्लीकेशन, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको जो है फंक्शनैलिटी उसके अंदर कहना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन होगी, और उसको हम ज़्यादा वही ऊपर जो हमने बात की कि ज़्यादा ट्रस्ट के साथ जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक और बेनिफिट सॉफ्टवेयर रीयूज़ का है कि स्टैंडर्ड कंप्लायंस है, कि अगर स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप कंपोनेंट्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर उनका रीयूज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसके अंदर जो एरर के चांसेस है वो कम होंगे। जैसे एग्जांपल लें, अगर यूज़र इंटरफेस स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करते हुए आप यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट बना देते, अगर उसमें एक ही तरह के मेन्यूज़ हैं, एक ही तरह की उसके अंदर नेविगेशन है, तो डेफिनेटली यूज़र उसके साथ फेमिलियर होगा, और उस तरह के इंटरफेस को जब वो यूज़ करेगा तो उसके अंदर एरर का जो चांस है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से एक और इसका जो ऑब्वियस बेनिफिट है दैट इज एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, और एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के अंदर जो की फैक्टर है दैट इज टाइम टू मार्केट। आपके कंपटीटर्स होते हैं और आप ज़्यादा जो है जल्दी या कम टाइम के अंदर मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जब आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रीयूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्शन है वो स्पीडी हो जाती है। आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का जो और कुछ की एक्टिविटीज़ जो रह गई थी उसको डिस्कस किया। उसमें सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारा जो की फोकस होता है दैट इज़ ऑन कोड एंड डेटा रीस्ट्रक्चरिंग। कोड के हवाले से हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको, जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पेसिफिक फॉलो नहीं की गई उस कोड के अंदर और बड़े बड़े उसके चंक्स हैं कोड के, उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी लेट्स से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे लेके आ जा सकता है प्रॉपरली, या उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पैराडाइम में भी लेके जा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चरिंग की जब बात करते हैं तो क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से जो है वो उनका रिलेशनशिप है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और इवन उसके अंदर हम अगेन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं रीस्ट्रक्चरिंग की। इवन हम उसके जो फिज़िकल जो मीडियम है, जो फिज़िकल जो फॉर्मेट है, उसको भी जो रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट से किसी और नए फाइल फॉर्मेट की तरफ जा सकते हैं, किसी पुराने डेटाबेस से किसी नए डेटाबेस आर्किटेक्चर पे जा सकते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो कब होती है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हमारे पास प्रोग्राम आर्किटेक्चर है वो सॉलिड हो, उसके अंदर हमें चेंजेस ना करना पड़े। अगर इफ वी फील कि वी नीड चेंजेस इन प्रोग्राम आर्किटेक्चर तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया कि इजी टास्क नहीं है, हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि एप्लीकेशंस को देखना होता है कि क्या हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, फिर डिफरेंट जो उनकी बिजनेस क्रिटिकलिटी है, उनका जो लाइफ टाइम है, उसको देखते हुए वी नीड टू डिसाइड कि हमें कहाँ पे रिसोर्स इन्वेस्ट करने हैं। और जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की फिर बात आती है तो जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। और दो डिफरेंट तरह की जो अप्रोचेस हैं उनको नॉर्मली फॉरवर्ड इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ किया गया। जब मेन फ्रेम हमने एप्लीकेशंस को कन्वर्ट किया तो हम उसको लेके गए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स के ऊपर, और इसके अंदर अगेन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं या लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं।
एक जो है वो डेटा से रिलेटेड है, डेटाबेस से रिलेटेड है कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज होगा, कैसे रिट्रीव होगा, और वो सारी जो भी उसकी उसको कहना चाहिए कंसिडरेशंस हैं डेटा के हवाले से वो। और फिर इसी तरह से आपकी बिजनेस प्रोसेस क्या है, बिजनेस लॉजिक को कैसे डेवलप किया गया है, और ये नॉर्मली सर्वर साइड के ऊपर होती है, इसको कैसे आपने वो करना है मैनेज। और थर्ड क्या है कि क्लाइंट साइड जो है वो कैसी होगी, क्या डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस होंगी फॉर डिफरेंट यूजर्स, इसको कैसे मैनेज करना है। और फिर इसी तरह से हमने बात की कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर भी हमने पैराडाइम को फॉलो करते हुए भी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की, और इसमें हम फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जब एप्लीकेशन को हम री इंजीनियर करते हैं। और इसके अंदर जो है हमने कहा कि अगेन देखना होगा कि, और इसमें हमने कहा कि हमें ये देखना होगा कि एप्लीकेशन को एज इट इज़ चलने दिया जाए या उसके कुछ कंपोनेंट्स को चेंज कर दिया जाए, जो कम्प्लीटली उसको रीडिज़ाइन कर लिया जाए। और फिर ये हमने डिस्कशन की कि हम क्यों जो है हम री इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, कि अगर हम रीडेवलप करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन तो इसके अंदर हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और हमने कहा कि नए जो मॉडर्न जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, पैराडाइम्स हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो उसको रिड्यूस किया जा सकता है, हमारे पास कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी उस एप्लीकेशन की, और उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम में हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को उसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट कंसिडरेशंस को हमने डिस्कस किया। और फिर उसके बाद हमने बात की कि वी नीड टू एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कॉस्ट के री इंजीनियरिंग कब होनी चाहिए, किस एप्लीकेशन के लिए होनी चाहिए, उसके अंदर जो डिफरेंट तरह की कॉस्ट हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए, दैट इज़ के क्या एनुअल आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है किसी एप्लीकेशन की, किसी सॉफ्टवेयर की, क्या एनुअल ऑपरेशंस कॉस्ट है उसकी, और अगर हम उसको री इंजीनियर करते हैं तो उसके बाद री इंजीनियरिंग के बाद क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगी, बिजनेस वैल्यू क्या है उसकी री इंजीनियरिंग से पहले, आफ्टर री इंजीनियरिंग जो है उसकी बिजनेस वैल्यू क्या होगी। तो ये जो टोटल री इंजीनियरिंग की कॉस्ट है और जो टोटल जो आपके बेनिफिट्स हैं, इसके थ्रू जो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो हाईएस्ट आपको कॉस्ट बेनिफिट जो नंबर मिल रहा है उस एप्लीकेशन के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या री इंजीनियर करना चाहिए उस एप्लीकेशन को, और जो लो प्रायोरिटी हैं जिनके ये नंबर कम है उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों और हम उनको भी री इंजीनियर करें। और फिर इसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर रीयूज़ के हवाले से, और सॉफ्टवेयर रीयूज़ को हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट लेवल के ऊपर हो सकता है। कंप्लीट एप्लीकेशन भी जो है रीयूज़ कर सकते हैं आप, कोई एक कंपोनेंट, कोई एक स्पेसिफिक सब सिस्टम भी रीयूज़ कर सकते हैं, और इवन एक सिंगल फंक्शन के लिए जो आपने कंपोनेंट लिखा है, एक सिंगल आपकी ऑब्जेक्ट क्लास जो है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने रीयूज़ के बेनिफिट डिस्कस किए कि हम रीयूज़ की तरफ क्यों जाते हैं। पहले हमने कहा कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, और इसके अंदर जो है हमें जो बेनिफिट्स हैं कि डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है, आपको पहले से बने हुए सिस्टम्स कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, और आप मार्केट के अंदर जब compete कर रहे होते हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर इसके अंदर इम्प्रूव्ड क्वालिटी होती है क्योंकि आपका जो कंपोनेंट्स या जो सिस्टम है दैट इज़ ऑलरेडी टेस्टेड, रिलायबल होता है, ज़्यादा आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से कॉस्ट भी आपकी मेंटेनेंस की इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ एरर्स या बग्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स हैं जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर रीयूज़ की बात करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद सॉफ्टवेयर रीयूज़ के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।